Hi, students. Good day to all of you. Thank you again for joining. Before we start on the session for data center technologies and its functions, I would like to reiterate that this session is being done based on your voting. The voting that we had conducted, I think the maximum number of students selected this particular topic. And I'm happy that this topic was selected for some important reasons. The topics that we have done previous to this particular topic is very much crucial to understand the data center technology and functions because they are all interrelated with each other. अगर आपको जो हमने लास्ट टॉपिक में व्हेन वी हैड डन अगर आपने वो नहीं अटेंड किया होता वो टॉपिक या उस टॉपिक को नहीं समझा होता तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता. So I think it was a very good choice and the maximum number of students had selected this. So thank you. Now going further, I think some students were, because of their unavailability or their busy schedule or for whatever reasons, they were not able to join our last session. So my sincere request is that I'm urging you, आप प्लीज वो सेशंस को रन करें और उसको देखें. अगर आप वो सेशन प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस सेशन and grasp the knowledge that is going to be coming out of this. The sessions are all interconnected, and that's when I'm choosing the relevant topics, I want to create that connection so that it is easier for you to understand, it is easier for you to correlate. आप रिलेट कर सकें कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, उससे जुड़ा हुआ अब क्या टॉपिक्स है, हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, and how that will all be interrelated with each other. Because when we complete the month of November or maybe early December, जिन स्टूडेंट्स ने ये सारे टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे इन दीज जो हमने कवर किए अक्टूबर में और जो हम करेंगे नवंबर में और अर्ली दिसंबर में, ये आपको केपेबल बना देगी फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ कंप्यूटर इज, जो हमारा फर्स्ट सेशन था, व्हाट ए सर्वर्स आर, उसमें सर्वर्स में की डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, एंड देन व्हाट इज द डेटा सेंटर टेक्नोलॉजीज. एंड जो सेकंड टॉपिक आपने सिलेक्ट किया था वो है ओएस, दैट इज यू ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये सब सारे ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे एंड इफ यू सिंसियरली गो थ्रू ईच ऑफ दीज टॉपिक्स, लिसन टू देम एटलीस्ट 2 to 3 times बाय अंडरस्टैंडिंग इट. सिर्फ सुनना नहीं है, दिमाग लगा के सुनना है, सोचना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है. बिकॉज ये टॉपिक्स आपके लर्न हो जाएंगे तो आपके लिए फॉर whenever you are talking to somebody on a platform of computers, IT, so at least from a hardware standpoint आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप नॉलेजेबल होंगे. जैसे ही ये टॉपिक्स खत्म होंगे हम आपको गाइड करेंगे. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ परमानेंट करियर अराउंड दिस टॉपिक्स, जिन बच्चों ने ये सारे टॉपिक्स लर्न किए हैं उनको सर्टिफिकेट दी जाएगी, जिन्होंने ये सारे अटेंड किए उनको सर्टिफिकेट दी जाएगी, और उन बच्चों को आगे इन टॉपिक्स पे मास्टर करने के लिए, इन टॉपिक्स को मास्टर करने के लिए, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स में भी मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, मल्टीपल जॉब रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो उसमें से आपको अपने मुताबिक जो अच्छा लगता है हम आपको गाइड कर सकते हैं टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर फील्ड, डू सम प्रोफेशनलाइज्ड कोर्सेज अराउंड दैट, and then you can go and opt for a job with a decent salary and with a very good growth potential. Okay, so I think I have been very clear on the path that we want you to take. एक बार हमारा सर्वर टेक्नोलॉजीज का पाथ खत्म हो जाएगा तो देन द नेक्स्ट वी आर इंटेंडिंग इज गोइंग टू बी ईदर नेटवर्क और डेटाबेस. So again, I will be doing a poll at that point in time. हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स बताएं हमको आप क्या सुनना चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, आप क्या पढ़ चाहते हैं, and accordingly we will select those topics. One more good news I have for you is in the coming topics we will be having mentors from very big organizations,
and senior people from the level of directors to technical subject matter experts who will also join these sessions of ours and give their perspective on what is happening in the industry. So it would be good for you to join those sessions and understand, because these are people who are very, very senior, they are highly skilled, and they are very senior professionals in their careers. I would really want each one of you to grow in your prospective careers, whatever respective careers that you select. I want you to grow, and my best regards are with you. So, okay, enough of talking. Now we will start with data center technologies and functions. Now, what is a data center? A data center is a physical facility that houses an organization's IT infrastructure. मतलब ये एक फिजिकल एक ऑफिस है. ओके, सपोज हम लेते हैं एक बैंक है, XYZ बैंक. उस बैंक का एक पूरी बिल्डिंग है ना, वो पूरी बैंक है, 10 माले की बिल्डिंग है, पूरी बैंक है. अब वो बैंक क्या करती है, अपने 10 माले के उसमें एक फ्लोर अपना बना लेती है, विच इज बेसिकली देयर डेटा सेंटर. उस डेटा सेंटर को हमेशा अलग बनाना पड़ता है. इट कैन नॉट बी मेड समवेयर वेयर पीपल आर वर्किंग एंड ऑल. वो क्यों, हम आगे के आप जैसे जैसे हम डिटेल में डीप डाइव करेंगे, आपको ये चीज समझ में आएगी, और ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. तो सपोज वो आईटी टीम, वो बैंक ने एक 5वें माले पे अपना डेटा सेंटर बना लिया. नाउ द डेटा सेंटर दैट इज क्रिएटेड hosts all the applications, servers, storage, networking, and all its technology components, which are your application, your web servers, your web processors, your mail servers, your edge servers, your cloud computing servers, hybrid cloud servers, everything that is there from a bank's IT perspective, print technology, everything. The printers are with the users, but the print servers are in the data center. तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, they are kept in the data center. Now, why is it separate? Its primary purpose is to store, manage, process, and disseminate data efficiently and securely. Efficiently and securely बहुत सिंपल टर्म्स है, बट इसकी जो डेटा सेंटर से रिलेशन है वो बहुत ही डिटेल्ड रिलेशन है. Why and how I will be explaining you. तो आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, हमने ना इसको ऐसे प्लान किया है कि हम जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे ये चीजें टेक्निकल होती जाएंगी. तो आई विल स्टार्ट विद बेसिक्स सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डेटा सेंटर, एंड देन वी विल गेट इनटू मोर टेक्निकल पार्ट ऑफ इट. अगेन माय रिक्वेस्ट इज, एवरी सेशन दैट आई एम डूइंग, एक बार सुनने से वो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठेगी. अगर बैठ जाती है, नथिंग लाइक इट, आई वुड बी very happy. But it is difficult. So please review those sessions. Review 2 sessions together so that you can connect the 2 sessions. Okay? ये चीज आपको अपनी क्लासेस, अगर कोई क्लासेस में भी ज्वाइन करेंगे, आपको नहीं मिलेगी. एंड अगेन आई अर्ज यू कि जब आप ये सेशंस लेते हैं तो आप इंटरनेट पे जाके इसके बारे में मैंने जो पढ़ाया है, ओके, जो मैंने आपको समझाया है, आप वो इंटरनेट पे जाके गूगल करें, सर्च करें, उसके ऊपर और थोड़ा सा नॉलेज हासिल करें, बिकॉज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर. इन दीज 2-3 hours ऑफ सेशंस आई मे नॉट बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, आपके डाउट्स. तो आप नेट पे से भी कुछ चीजें ढूंढ सकते हैं. और द अदर ऑप्शन इज, you are already a part of our channel. If you don't have the channel, Haris, I am asking you, requesting you to please paste the channel link in the chat box so that the children can use it. Be along, the channel is a single way जहां पे हम बताते हैं, आप सुनते हैं, okay, या आप वोट करते हैं, या अपने preferences बताते हैं through some channel that we are providing. But then we have a WhatsApp group, a counseling group, where only students are there. Those students can ask some questions there. But there are so many students that it becomes very difficult for us to answer all of them. I feel the smarter students are the ones who go and Google out their questions, and I assure you that you will get all your answers on the net. अगर कोई चीज टेक्निकली समझ में नहीं आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं.
Don't reach out to me on my personal addresses or my personal chat box, because I will not be answering. For the benefit of all students, please ask in the WhatsApp group or on this sessions, so that everybody can hear your question and understand the answers. So for the benefit of all, I am not going to answer individually to anybody. It will be always through a forum, and that is going to be currently our WhatsApp group. Haris, please also paste the WhatsApp group link. Okay, we should clearly specify our channel link as well as our group link so that people can understand. So again, what is a data center? It is a physical facility that houses an IT infrastructure of the organization. एक organization का पूरा IT infrastructure है, वो data center में होता है. ठीक है? Now let's proceed. What are the key characteristics of a data center? The most important part of a data center is the infrastructure. Okay. What is the infrastructure? The infrastructure is their servers. Okay. जो हमने last time, if you remember the last session on the servers, we spoke about the various type of servers. Depending on your IT or depending upon your organization, you would select which server, and the data center would be comprising of those servers. It could be an HPC, it could be a cloud server, it could be a HPC server. Okay. High performance cluster, it could be enterprise server, it could be anything. All those servers that we spoke about, it comprises of servers. Then we had also spoken about what are the kind of storage devices, the physical storage devices, the NAS devices, okay, the network access storage, or the tape libraries, or the LTOs. These are physical tape, devices for storage. Then there are network equipments. There are switches, routers, firewalls. Then there are backup systems. To back this data up, you have physical devices which are connected to your server. So the data from your server can be physically backed up into tape drives. And those tape drives can be safely secured in some other premises. Why? I will be explaining in the later slides. So again, an infrastructure for a data center is server, storage, networking, backup system. This is the IT infrastructure. Now, if you see the picture that is there on the screen, a data center requires multiple components. So if you see what is on the top, okay, is how a data center functions through the web monitor, through your client monitor. The client monitor can be your desktop computer, as I had explained last time. Okay, so those are the end user. But then those end users or the network is connected through to the facility and the IT. So if you see this blue line in the center, it is your network. Because for connecting any two different IT devices, whether it's a desktop or a laptop to your servers, you need a network. So the network layer is there. Now then in a data center, what is important is the facility. Why is facility very important? Because a data center cannot be any room. A data center needs high power. So power is going to, and this is power is not IT. It is not information technology. Power is power. Power you have at your house, you have at your offices, it's power. But for data center, you require very high power. Okay. So for maintaining that power, for managing that power and ensuring that that power is uninterruptedly, वो बगैर किसी रिकॉर्ड के सर्वर्स को चलाएं, there is a full-fledged system that is required. So power is a very important component of a data center. Then when you are using so much of power for so many number of servers, like if you say a bank, it has got 5,000 ATMs, 2,000 branches, 50 lakh customers. You just imagine the kind of data that bank is generating. For running that kind and processing that kind of data, you need very high processors. These high processors generate a lot of heat. The amount of power that is consumed generates a lot of heat. So you need cooling. Cooling is again a very important part of the facility. So cooling, there are different methods of cooling. We will again learn them in more detail, but power and then cooling. Other than these two things is the environment. Now, what is very important about the environment? When you say environment, it is that, your data center, the walls have to be of a particular level. They have to be of a particular color so that, if the colors are normally white,
so that it does not absorb a lot of cooling. It does not take away your cooling. Your data center remains cool. There are a lot of other things like your access controllers. Nobody can just walk into a data center. For getting into a data center, you need a high administrator level kind of access. So getting access to that data center, getting monitors and network cables through those data centers. There are passive cables. Power cables are going into the racks. There are physical cables of networks that are going into the racks. There are lot of cabling work that is done, and all these things are called passive components of a data center. This is again not IT, but yes, these are important. As I said, in the environment there is something which is very important: access. Access is very important from a physical security standpoint, so that nobody can just enter, because data center में जो data है वो इतना important. मैंने जैसे एक बैंक का आपको बताया, एक बैंक का डेटा कितना इंपॉर्टेंट है. यूजर्स है, उनका पैसा है, उनका सारा डेटा है, उनका आईडीज है. Nobody should be able to allowed into the data center. So physical security is important. Firewalls are important. Cyber security is important. So access is again a facility. Here, why we are not taking cyber security access, हम क्यों बोल रहे हैं? Because this is physical. तो physical guard का होना भी जरूरी है. So that's where access. And then one more important thing is surveillance. कि डेटा सेंटर में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है. कोई अगर डेटा सेंटर मल्टीपल लोगों ऑर्गेनाइजेशन, अगर क्लाउड डेटा सेंटर है जहाँ पे एक बैंक नहीं 3 अलग अलग कंपनी का डेटा रखा हुआ है, तो अगर मैं एक XYZ बैंक के काम से उस डेटा सेंटर के लिए गया, बाजू वाले रैक में एक कोई दूसरी कंपनी का डेटा है जो एक कपड़े की कंपनी है, तो मैं उसका डेटा तो एक्सेस नहीं कर रहा. तो ऑल दिस हैज टू बी फिजिकली मॉनिटर्ड, एंड दैट्स वेयर सर्वेलेंस इज रिक्वायर्ड. Again, we will get into a lot more detail going down, but these are high level facility requirements जो एक डेटा सेंटर को बनाने के लिए लगती है. इनके बगैर एक डेटा सेंटर is not an actual data center. It's only a room. It could be called an IT room, but it's not a data center. एक IT room में सर्वर रखने का या इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रखना is not logical. It does not work appropriately. Okay. Now, this is from a facility standpoint. Now, let's see what is from an IT standpoint. IT में, there, as I explained above, there are servers, network, all the assets that are there is actually from an asset perspective. So we spoke about servers, network, the different assets. Those assets could be your tape libraries, your storages. It could be your blade servers. It could be, monitors. Anything that can be used from an IT standpoint is again required. Now, on these servers, there are operating systems, Microsoft, Linux. If you remember my last session, all these things were explained. And after the sessions of data center, we are also going to have a session on operating system technologies. Okay, so we will be getting into those details about operating systems in the upcoming sessions. So we will not spend too much time around this particular subject. Then there are virtual machines. We also spoke about virtualization, how a virtual server is created at a high level in my last session. That's why I always say, please review the previous sessions. Otherwise, you will not be able to connect what I'm saying. मैं जो आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप उसको रिव्यू नहीं करेंगे, ये चीजें समझना डिफिकल्ट होगा. And when we are discussing about OS technologies, virtualization will be a core component of that particular session also. So again, not spending too much time. Concluding, data center requires facility, data center requires IT. What is a data center? A physical area where an IT infrastructure of an organization is set up in an appropriate fashion, which has all these functions, is called a data center. So infrastructure ho gaya. Now we come to, as I was explaining you above, power and cooling. So data center, why power and cooling is important? Data center requires a reliable power source. So just imagine कि एक डेटा सेंटर में हमने एक बड़ा बैंक है जिसके लाखों यूजर्स हैं, करोड़ों यूजर्स हैं, और मतलब जैसे इंडिया में इफ वी सी देयर आर 120-130 crore people, तो every large bank would be having at least 15-20 crore users. Just imagine.
उनका डेटा है। अभी सपोज वो डेटा सेंटर में जो पावर आ रहा है वो पावर का डिसरप्शन हो गया, डेटा सेंटर कैन नॉट रन विदाउट पावर। सो अगर वो पावर का डिसरप्शन होता है तो क्या होगा, सारे सर्वर्स बैठ जाएंगे। हाउ विल इट इम्पैक्ट एवरीबडी? 20 करोड़ लोग अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एटीएम से पैसा नहीं निकाल पाएंगे, कोई भी परचेजेस नहीं कर पाएंगे। इफ यू calculate the amount of loss that a large bank would have by disruption of power or disruption of their availability of their applications or data is in millions of dollars. And that's where organizations spend millions and millions of dollars in ensuring high availability. Again, we will be discussing these points in the next upcoming slides, but they spend millions and millions of dollars. Why people are paid such high salaries? Because जो data loss होता है, every transaction that a user does in a bank, the bank earns some money. How it earns money? जैसे आप अगर 20 करोड़ लोग हैं, अगर एक एक बंदे ने अगर 2-2 हज़ार रुपया भी रखा, which I am telling you at a very low value, तो आप जस्ट सोच लीजिए वो बैंक में कितना पैसा है, 1 घंटे में उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर उसका काम ठप हो जाता है तो उसको लॉस कितना होता है। लोग डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे उस बैंक में अकाउंट, वो कहीं और जाएंगे। वो अगर परचेस करने जा रहे हैं या ईएमआई ले रहे हैं या लोन ले रहे हैं, अगर उस बैंक से नहीं मिलेगा तो वो कोई और बैंक हो या कोई और, नोबडी विल वेट कि भैया 2 दिन तक बैंक बंद है तो मैं वेट करूंगा, कोई रुकता नहीं है किसी के लिए। दे विल गो टू अ डिफरेंट बैंक और अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। इसमें क्या होगा, बैंक का लॉस होगा, करोड़ों का लॉस होगा। तो वो बैंक कस्टमर का लॉस होगा, रेपुटेशन का लॉस होगा, वो सब लॉस बनाने के लिए दे नीड रिलायबिलिटी। तो व्हाट इज देयर टू हैव रिलायबिलिटी? अप्रोप्रिएट पावर, पावर सोर्सेस जो इफेक्टिव हो, वेयर यू नो कि देयर आर मल्टीपल पावर सोर्सेस, वेयर योर पावर इज कंटिन्यूसली अवेलेबल फॉर योर इंफ्रास्ट्रक्चर टू रन। सिमिलरली जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, डेटा सेंटर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कूलिंग। हमारे घर में जो एसीज होते हैं, ओके, जो हम हमारे घर में यूज करते हैं उसको कंफर्ट एसी बोलते हैं, बिकॉज दैट इज फॉर आवर कंफर्ट। अब वो एसीज क्या करते हैं, आप उसको जब चालू करोगे, आप रखोगे 24 डिग्रीज टेम्परेचर पे, 20 डिग्रीज पे, वॉट एवर, तो वो कोशिश करते हैं, चलते रहते हैं रूम ठंडा करने की। बट डू यू थिंक दे एक्चुअली गिव यू टेक यू टू 20 डिग्रीज? Yes, some may be doing that, but depending on your size of the room, the furniture that is there, the number of people that are there in the room, वो टेम्परेचर ऊपर नीचे होते रहता है। जैसे अभी मेरा रूम है, अब मैंने इसमें 1.5 टन का एसी रखा है। अब वो 1.5 टन के एसी में 120 स्क्वायर फुट का रूम है। अगर मैं अकेले बैठा हूं और मैंने 20 डिग्रीज पे रखा है, वो 20 डिग्री अचीव करेगा। अब सडनली रूम खोल के मेरी फैमिली आ गई रूम के अंदर, अब 5 लोग आ गए रूम के अंदर। अब बॉडी हीट जनरेट करती है, तो 5 लोग आ गए, रूम का टेम्परेचर 20 से 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। अब डेटा सेंटर में अगर किसी भी एक्सटर्नल, आई डोंट से पीपल विल गो, बट ड्यू टू एनी एक्सटर्नल रीजंस, अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, एक डेटा सेंटर में हजारों सर्वर्स भी हो सकते हैं, तो वो इतना गर्म हो जाएंगे सर्वर कि वो सर्वर मैल फंक्शन करेंगे। अगेन, लॉस ऑफ सर्वर, डाउन टाइम, मतलब सिस्टम्स डाउन, loss of reputation, loss of money. So power and cooling is very important in any data center. Every organization that needs their systems to be up and running 100% has to have an appropriate data center. इसके ऊपर हम बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे जाते हुए। So please continue and focus. These were the simple part, very simple portion है। अब डेटा सेंटर में कूलिंग कैसे होती है? अब अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लू है, जो ये सर्वर्स बने हुए हैं, यू कैन सी दीज रैक्स। तो जो ब्लू है आगे का हिस्सा, जहां पे आपको 2 लाइट्स दिख रही है, वेयर यू कैन सी माय कर्सर मूविंग, दीज आर द फ्रंट पोर्शन ऑफ द सर्वर्स। तो जो फ्रंट पोर्शन है ना, यहाँ पे कोल्ड एयर रहती है। बट जो बैक साइड है, इफ यू सी दीज ब्लैक लाइंस बिहाइंड, दिस इज द बिहाइंड द सर्वर्स, यहाँ पे फैंस होते हैं। तो यहाँ से जो सर्वर की गर्म हवा है वो बाहर फेंकी जाती है। तो ये पीछे से, ये मतलब दीज आर दी एरियाज, ये बीच में जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये उतना ठंडा नहीं होता जितना आगे वाला पोर्शन ठंडा होता है। तो इफ यू सी, देयर इज अ वे दी सर्वर्स हैव टू बी पुट इन अ डेटा सेंटर, सो दैट द वार्म एयर एंड कोल्ड एयर, मतलब अगर मैं इस सर्वर्स को उल्टा रख दूं और एक तरफ सर्वर का फेस है, दूसरी तरफ सर्वर का बैक है, तो गर्म हवा जा रही है सर्वर के फेस पे, वैसे नहीं हो सकता।
So the units have to be placed in a way that is appropriate for a data center to remain cool, so that the circulation of air is appropriate. वार्म एयर किधर से आ रही है, किधर जा रही है, वार्म एयर को बाहर जाने के लिए जगह है, कोल्ड एयर के लिए है. और जो डेटा सेंटर में जो एयर कंडीशंस लगते हैं, दे आर नॉट कंफर्ट एसीज, दे आर कॉल्ड प्रिसिशन एसीज. प्रिसिशन एयर कंडीशन बोलते हैं इसको, बिकॉज अगर आपने उस पे सेट किया 20 डिग्रीज, तो वो उस पर्टिकुलर रूम को 20 डिग्रीज पे ही रखेगा. वो ना उसको 19 होने देगा, ना उसको 21 होने देगा. जैसे ही वो ऊपर नीचे होगा, वो अपनी कूलिंग बढ़ाएगा और उस टेम्परेचर को जिस पे जो आपने अपने डेटा सेंटर के लिए सेट किया है, उस टेम्परेचर पे लाके छोड़ेगा. सो दैट द अमाउंट ऑफ कूलिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वर्क अप्रोप्रिएटली इज मेंटेन्ड इन द इन्वायरमेंट. उस इन्वायरमेंट को वो उतना कूल रखे, ना उससे ज्यादा करे ना उससे कम करे. अब ज्यादा करने में कोई बुराई नहीं है, बट आप जितना प्रिसिशन एसी को ज्यादा कूलिंग पे लगाओगे, बिकॉज दीज आर वेरी हाई पावर्ड एयर कंडीशनर्स, तो वो उतना ज्यादा पावर खींचेगा. जितना पावर खींचेगा उतना कंजम्पशन इलेक्ट्रिक का ज्यादा होगा. कंजम्पशन ज्यादा होगा तो वो हीट अलग और उसका खर्चा अलग. सो एवरीथिंग हैज टू बी प्लान्ड अप्रोप्रिएटली. आपके डेटा सेंटर में कितने सर्वर्स हैं, कितने स्विचेस हैं, कितना स्टोरेज है, ये कितना हीट जनरेट करते हैं. जो भी कंपनी ये सर्वर्स बनाती है ना, वो उसकी है ना व्हाइट पेपर बनाती है कि भैया ये सर्वर के लिए ये दीज आर द थिंग्स दैट आर कंपैटिबल, ये इतना पावर सोर्स यूज करेगा, ये फुल कैपेसिटी पे इतना हीट रिलीज करेगा, इसको ठंडा रखने के लिए इतना एयर कंडीशनिंग चाहिए. ये सारी चीजें उस व्हाइट पेपर में होती है. तो व्हेन अ डेटा सेंटर, जब मैं एक कंपनी में आईटी मैनेजर हूँ और मुझे मेरे बॉस ने बुलाया कि उनको डेटा सेंटर बनाना है, तो जब मैं डेटा सेंटर बनाऊंगा तो ये सारी चीजों को कंसिडरेशन में रखूंगा कि भैया मुझे आज कितने सर्वर लगने हैं उस रूम में. अच्छा, आज से 5 साल बाद मुझे कितने सर्वर लगने हैं, और वो सर्वर को रन करने के लिए कितना पावर लगेगा. बिकॉज अगर मैं वो आज प्लान नहीं करूंगा तो मैं रोज थोड़ी उधर जाके पावर पॉइंट्स ऐड करूंगा या प्रिसीजन एसी ऐड करूंगा. लोग अपने डेटा सेंटर जब बनाते हैं तो उसको नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए रेडी करके बनाते हैं, मिनिमम 10 ईयर्स. क्योंकि तभी तो आपको जो आरओआई होता है, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, आप उस पर जो खर्चा कर रहे हो उसका रिटर्न आपको आएगा. ओके, तो ये लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न होता है. तो अगेन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, पावर एंड कूलिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ डेटा सेंटर स्टैंड पॉइंट. आगे हम और डिटेल में जाएंगे, बट ये अंडरस्टैंड रखें आप कि पावर एंड कूलिंग क्यों नेसेसरी है. अब आप सोचेंगे कि भैया ये बैंक का डेटा है, या आरबीआई का जैसा डेटा है, या टेलीफोन का डेटा है, या कोई कंपनी का बहुत मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स है कि भाई एक कंपनी एक फूड प्रोडक्ट बना रही है, उसका पर्सनल कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है. कुछ भी हो सकता है, मतलब सबका डेटा अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है. उसके ट्रेड सीक्रेट्स है, उसके अकाउंट्स है, बहुत सारी सीक्रेट्स होती है. तो आप सोचेंगे कि भाई क्या सिक्योरिटी मेजर्स होते होंगे अदर देन द साइबर सिक्योरिटी टू अवॉइड hackers to hack into your systems. There are very high physical security measures. Okay, अब खाली मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. पहले तो आप कोई भी बिल्डिंग में जाएंगे तो बिल्डिंग में पहले गेट पे पेरीमीटर सिक्योरिटी होती है आपके सीसीटीवी से, तो उधर आपको देखा जाएगा. पैरामीटर गार्ड हाउस, मतलब आप बिल्डिंग में एंटर होते हो तो पहले गार्ड होता है, तो वो भी एक सिक्योरिटी होती है. बिल्डिंग की एंट्रेंस की सिक्योरिटी होती है. अब पर्सनल एक्सेस फिंगरप्रिंट रीडर्स आजकल लग गए हैं सबके पास, या रेटिना स्कैनर्स लग गए. तो आपकी पर्सनल एक्सेस होती है, क्योंकि अगर आपको सिक्योर जोन में जाना है तो आपको पर्सनल एक्सेस चाहिए. अगर आप अभी नए होटल्स में या कोई बड़ी कंपनीज में जाएंगे, तो अगर आपको 5 माले पे जाना है तो आपको जो एक्सेस कार्ड दिया जाता है वो आप लिफ्ट में लगाएंगे, आप सिर्फ 5वें माले पे जा पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू गेट टू दी अदर फ्लोर्स अंटिल यू हैव एक्सेस टू देम. तो ये लिफ्ट में भी लोगों ने एक्सेस लगा दिया है. अब डेटा सेंटर का जो कॉरिडोर होता है उधर एक अलग सिक्योरिटी होती है. अब डेटा सेंटर के अंदर जब हम जाते हैं तो वो अदर देन दी डोर सिक्योरिटी, देयर इज अ वॉल्ट ऑल्सो, सो दैट ओनली रेलेवेंट पीपल आर एबल टू गो इन. वॉल्ट और डेटा सेंटर डोर के बीच में स्क्रीन होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, जहां से यू कैन लॉग इन टू द डेटा सेंटर एंड डू योर वर्क लाइक मेंटेनेंस वर्क. बट फिजिकली अगर तुमको डेटा सेंटर में काम करना है तो देन देर इज अ रैक लेवल एक्सेस ऑल्सो. जो रैक्स होते हैं, रैक्स मतलब कबर्ड, जैसे हमारे घर में कैसे कबर्ड होते हैं, वैसे ये सर्वर्स को, स्टोरेज को, नेटवर्क स्विचेस को रैक्स में रखा जाता है.
in a data center, and those racks are of different sizes, 2U, 3U, 5U, 10U, मतलब ये उनकी साइजेस होती हैं। तो ये सारी चीजें रैक्स में रखी जाती है और वो रैक लेवल एक्सेस भी होता है। जस्ट इमेजिन कि कितने इंपॉर्टेंट डेटा की हम बात कर रहे हैं, कि उधर इतनी टाइप्स की तो खाली फिजिकल सिक्योरिटी, आपको एक डेटा सेंटर में जाने के लिए इतने सिक्योरिटीज का ऊपर एक्सेस होगा, तब जाके आप डेटा सेंटर में जाओगे। एंड दिस इज देयर एज अ नॉर्म फॉर ऑल डेटा सेंटर्स। ऐसे नहीं कि सिर्फ बड़ी कंपनियां ये कर रही है, आज मैक्सिमम कंपनीज ये चीज फॉलो करती है, बिकॉज फॉर एवरीबडी देयर डेटा इज इंपॉर्टेंट। अब मुझे मेरे घर के लिए मेरा डेटा, मेरे पास जो मेरा लैपटॉप पे डेटा है वो मेरा इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर पासवर्ड लगाता हूँ, उस पर ड्यूअल ऑथेंटिकेशन लगाता हूँ, 100 चीजें करता हूँ। तो आप सोचो कंपनी का डेटा है तो वो इतनी चीजें तो करेंगे फ्रॉम अ फिजिकल स्टैंड पॉइंट। तो हमने फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स पढ़े। अब नाउ हम जाते हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। साइबर सिक्योरिटी अगेन नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, फायरवॉल्स होते हैं, डेटा इंक्रिप्शन होते हैं। These we will learn. These are very, very detailed, respective topics. Physical security is not IT. I explained you. Understanding is important. Keep it in your mind. Firewall and encryption is a technology. इसकी अलग प्रोफेशनलाइजेशन होती है, इसके अलग जॉब्स हैं, इसके अलग स्किल्स हैं। तो इसके ऊपर जो सेशंस होंगे वो नेटवर्क के टाइम पे आएंगे। इंक्रिप्शन के जो स्किल्स हैं वो आपको जब हम ओएस टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, हम तब बात करेंगे। So remember these, connect all your sessions. साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क के उसमें आएगा, इंक्रिप्शन ओएस के उसमें आएगा। entire IT is connected. It is all connected to each other. And what I am teaching you all in these sessions is an appropriate overview. आप ये चीजें, ये सेशंस करके आप पूरा एक आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलता है वो समझ जाएंगे। फिर प्रोफेशनलाइज करना है, वी विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आप समझ जाएंगे कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर लाइन में मेरा इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाहता हूँ। एंड देन एट दैट पॉइंट अगर आप डिसाइडेड हो, हमारे ग्रुप में आए, हमको बोले कि हाँ मैंने ये पर्टिकुलर चीज डिसाइड कर ली है, फिर आपसे बात करके हम समझ के आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट है, हम आपको आपके लिए एक आगे का करियर पाथ डिजाइन करके दे देंगे। डोंट डू इट इन हेस्ट। आपकी एजुकेशन आप कंटिन्यू करें, उसके साथ में आप ये सेशंस रन कर रहे हैं, आप ये सेशंस को यूटिलाइज करें। इफ यू फील यू आर रेडी टू सिक्योर अ पाथ, प्लीज कम टू ज्वाइन आवर चैनल, ज्वाइन आवर ग्रुप एंड कम एंड टॉक टू अस। वी आर ऑल अवेलेबल। थोड़ा सा कूल डाउन हो जाते हैं, आई थिंक काफी डिटेल बात हुई है। अब थोड़ा हमने ऊपर बात की थी फिजिकल सिक्योरिटी की, कितनी फिजिकल सिक्योरिटी होती है। अब थोड़ा डेटा सेंटर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर वी विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स, बट थोड़ा बहुत हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग देना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डेटा सेंटर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर तो हमको समझना पड़ता है कि हमको सिक्योर क्या करना है। जैसे सारी चीजें सिक्योर करनी है तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जिसको ज्यादा सिक्योरिटी होती है। जैसे एक अकाउंट का, मैं एक अकाउंट होल्डर हूं इन एन XYZ बैंक, मेरा नाम, मेरा अकाउंट डिटेल्स, मेरा आधार, मेरा डेट ऑफ बर्थ, कुछ डेटा ऐसा होता है जिसपे किसी को एक्सेस नहीं होता, बैंक के खुद के कर्मचारियों को एक्सेस नहीं होता। ओके, रीड राइट एक्सेस किसी को नहीं देते। तो पहले तो अपने सिक्योरिटी को स्कोप करें कि किस चीज को कितना ये देना है, सिक्योर करना है। फिर आप जो डेटा सेंटर बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या इश्यूज आप फोर्सी करते हैं। जैसे बैंक्स होते हैं उसमें अलग डेटा होता है, उसके डेटा थेफ्ट अलग होता है, तो लोग नॉलेज बेस होता है। ओके, जैसे अगर एक फायरवॉल की कंपनी है सिस्को के पास, तो उसके पास नॉलेज होता है कि भैया आज से पहले तक ये 5,000 डिफरेंट टाइप ऑफ हैकर्स ने इन इन तरीकों से हैक किया है, तो उसको बचाने के लिए ये पर्टिकुलर फायरवॉल चाहिए। तो आपको अपने डेटा से उसको मैनेज करना है, कंपेयर करना और देखना है आपको क्या क्या चीजें सिक्योर करनी है। फिर वो जो आप सिक्योर कर रहे हो वो प्रॉपर्ली सिक्योर हो रहा है या उसमें कोई ब्रीच है, उसको चेक करने के लिए आपको बंदे बैठाने पड़ेंगे जो 24/7 24 घंटे दिन में बैठ के देखते रहेंगे कि भैया कोई ब्रीच तो है नहीं, किसी ने कोई अननेसेसरी इनपुट तो नहीं मारा, कुछ डेटा सर्च तो नहीं हुआ।
देयर आर वेज यू कैन डिटेक्ट दैट देयर इज अनोमली इन योर डेटा। तो वो उसको फिजिकली देखना पड़ता है, मॉनिटर। अभी तो ये ऑटोमेटेड भी हो गया, बट फिर भी एज आई ऑलवेज से ऑटोमेशन इज ड्राइविंग द फ्यूचर। बट ऊपर वाले ने जो इंसान का दिमाग बनाया है उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। तो गवर्नेंस, that form of governance could be artificial intelligence or human, so that has to be decided. Then the data center governance के roles and responsibilities, कि अब भाई एक L1 लेवल 1 वाला बंदा है, लेवल 2 है, एडमिनिस्ट्रेटर है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर है, या सुपरवाइजरी है। तो ये पूरी गवर्नेंस भी होती है कि हर इंसान को अलग एक्सेस होती है, हर इंसान की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आप जब करियर में भी जाते हैं तो करियर ग्राफ भी ऐसे ही ग्रो करता है। जैसे जैसे आप नॉलेज बढ़ाते जाएंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे आप ग्रो करेंगे, आपकी सैलरीज ग्रो करेंगी, आपकी करियर ग्रो करेगा। अभी रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या क्या है, अगेन आई विल नॉट गेट इनटू दैट। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा उसके वेरियस फंक्शंस एंड टेक्नोलॉजीज हैं। वी विल डू इट इन डिटेल ड्यूरिंग दैट सेशन। देयर आर पॉलिसीज, हर चीज की पॉलिसी बनानी पड़ती है। कि अगर जैसे आप मतलब सिंपल एग्जांपल के लिए कि भैया अगर एक बंदा, आप अगर एक शॉप में लिकर खरीदना कोई चाहता है या सिगरेट खरीदना चाहता है, आपसे पूछा जाता है कि आप 18 साल के हो या नहीं। ओके, या तो आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हो तो आप 18 साल के नहीं हो तो आपको पेरेंट्स के साथ जॉइंट अकाउंट। सो सिक्योरिटी पॉलिसीज, प्रोसीजर, ऐसे बहुत सारे सिक्योर पॉलिसीज होती है बैंक्स की, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। एंड इफ यू गेट इनटू दैट, तब आप वो सारी पॉलिसी समझेंगे। तो उसके लिए आपको उसका प्रोफेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और फिर देन देर आर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, अगेन वेरी डिटेल इन फ्रॉम अ साइबर सिक्योरिटी कंटेक्स्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल था। व्हेन वी गेट इनटू मोर डिटेल्स, इसके ऊपर यू कैन रन मल्टीपल सेशंस only on data center cyber security, not even cyber security, only for data center cyber security. This again, if you remember my first counseling session, this particular profession has the highest job growth in the coming 4-5 years. I think it was 22% if I remember correctly. Go and review my first counseling session, उसमें इसके बारे में बताया गया है, and the salaries are also very high for this particular. But it is not simple. You will have to understand all the basics. You will have to understand and do a lot of work on networking. एक 2-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके आप साइबर सिक्योरिटी की कोशिश कर पाओगे, तब जाके आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनोगे। बट एक बार एक आपने 5 4 5 साल ये करियर कर लिया, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गए, आपका करियर सेट है। अब कनेक्टिविटी, अब कनेक्टिविटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा सेंटर में डेटा है, एप्लीकेशन है, वेब है, इंटरनेट है, सब कुछ है। लेकिन वो आप तक पहुंचाने के लिए कनेक्टिविटी की तो जरूरत है। कनेक्टिविटी के लिए क्या लगेगा, कोर स्विचेस लगेंगे। अब कोर स्विचेस क्या होते हैं, जैसे एक 10 सर्वर्स हैं, ये मैंने 4 बनाए हैं पिक्चर में। वो पहले एक 10 GB गीगाबिट जीपी का इस पे कनेक्टेड है, एग्रीगेट स्विचेस बोलते हैं, विच आर स्मॉलर स्विचेस। देन देर आर कोर स्विचेस, फिर वो कोर स्विचेस से कनेक्ट होते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों एग्रीगेट स्विचेस के पास जा रहे हैं, ये दो सर्वर इस पर्टिकुलर, ये दो सर्वर। बट देन फ्रॉम द कोर स्विचेस इट इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। वाई इट इज इंटरकनेक्टेड, कि सपोज सपोज अगर ये पर्टिकुलर कोर स्विच डाउन हो गया, तो still this particular aggregate switch can go use this core switch and give data to the end users. अगर ये core switch down हो गया तो फिर you can use this connectivity way to you go to। अब अगर आप सोचो कि aggregate level पे ही down हो गया, तो उसके लिए भी होता है, बिकॉज वर्चुअलाइजेशन, बिकॉज ये जो सर्वर है उस सर्वर का भी एक बैकअप सर्वर होगा। तो अगर आपने एक सर्वर बनाया है, सपोज ये मेल सर्वर है नंबर 1, तो इसका एक बैकअप मेल सर्वर यहाँ पे होगा। तो हर तरह से रिडंडेंसी, दिस इज कॉल्ड इन आईटी, इट इज कॉल्ड रिडंडेंसी, कि अगर एक चीज डाउन होती है तो वो दूसरी जगह से चलाने के लिए उसको तैयार के उसकी प्लानिंग करके रखी गई है, एंड दैट इज कॉल्ड आईटी रिडंडेंसी। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब नाउ स्केलेबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि अगर एक डेटा सेंटर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर एक कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो वो 1-2 साल के लिए नहीं करेगी, वो 10-5-10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करती है। कि भाई आज अगर वो एक पूरा रूम है 1000 स्क्वायर फुट का, उसने अगर यूज किया है सिर्फ 300-400 स्क्वायर फुट, वो लेगी 1000 स्क्वायर फुट का,
क्योंकि कल अगर कंपनी ग्रो करती है तो फिर वो थोड़ी दूसरा डेटा सेंटर बनाएगी जाके। वो क्या करेगी, उसी डेटा सेंटर में और रैक्स डालेगी और सर्वर डालेगी और उसको बढ़ाते रहेगी। जैसे जैसे रैक सर्वर जाएंगे उसके पावर सिस्टम और कूलिंग सिस्टम भी बढ़ाए जाएंगे। तो स्केलेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। बट वो आता है सेकेंड फेज में। पहले तो आपका डेटा सेंटर बने, पहले आप उसको यूज करें। जब आप ग्रो करेंगे उसको स्केल करें अपवर्ड। अब कितने बार अगर आपकी कंपनी नहीं चल रही है तो आप स्केलिंग, यू कैन स्केल इट डाउनवर्ड ऑल्सो। सर्वर निकालें, एसी यूज करना बंद कर दें, ज्यादा पावर यूज करना बंद कर दें। So scalability can be both upwards and downwards. Now what we are going to talk about is data center disaster recovery. अब डेटा को सिक्योर रखने के लिए देर आर मल्टीपल, जैसे मैंने ऊपर भी आपको समझा कि एक मेल सर्वर का एक नेटवर्क स्विच से कोर स्विच पे जा रहा है, वैसा उसका एक बैकअप सर्वर भी है। एक एप्लीकेशन है कोई, उसका एक बैकअप एप्लीकेशन है दूसरी जगह पे। बट अगर अभी आप सोचो कि अभी ऐसा एक बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है, इंडिया की, 50 करोड़ उसके पास कस्टमर्स हैं। उसने डेटा सेंटर बनाया नरमिन पॉइंट पे, बड़ा डेटा सेंटर बनाया, उसके अंदर सारे फैसिलिटी, सारा जो जो चीजें डाल सकता था सब कुछ डाल दिया। इट इज रेडी, इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट, और वो चल रहा है। अब क्या किया, ऊपर वाले की कुदरत ने एक जलजला आया, या पावर आउटेज आया, या कुछ भी हुआ कि भाई वो डेटा सेंटर तबाह हो गया। अब वो डेटा सेंटर, वो बिल्डिंग या वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया तो बैंक क्या करेगा? वो थोड़ी जाके अपने कस्टमर को बोलेगा कि भैया आपका डेटा, आपका पैसा सब था, हमको अभी पता नहीं किसके अकाउंट में किसका पैसा था, कितना पैसा था। वो तो पूरा डेटा सेंटर गया, सब गया, अब एवरीथिंग इज जीरो। ये हो नहीं सकता। सो दैट इज कॉल्ड एज डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी कैन बी एट अ सर्वर लेवल, एट नेटवर्क लेवल। अब लोगों ने क्या किया है, डिजास्ट्री एट फिजिकल सिक्योरिटी। जैसे प्राइमरी डेटा सेंटर, डिजास्टर डीआर जिसको बोलते हैं, डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर। मतलब जो डेटा यहाँ पे है प्राइमरी में, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस जो आप कभी नहीं छोड़ सकते, वो डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर में है। और बोथ आर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क। तो मतलब अगर आपका कुछ डेटा यहाँ पे अपलोड हो रहा है, यहाँ पे सेव हो रहा है, तो वो एट इंटरवल्स ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होके दूसरे फिजिकल जगह पे भी चले जाएगा। कि अगर ये पर्टिकुलर साइट बंद हो गई, खराब हो गई, बर्बाद हो गई, आपका डेटा कहीं नहीं गया, यू हैव अ डिफरेंट साइट। इनफैक्ट वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, आई कांट नेम, बट आप कोई भी बैंक उठा लो, कोई भी बैंक इंडिया की छोटी से छोटी, सॉरी, वो प्राइमरी डेटा सेंटर उनका होता है, उसके बाद उनका होता है नियर डीआर, मतलब नियर डिजास्टर रिकवरी। जैसे अगर नरिमन पॉइंट पे है तो एक नियर डिजास्टर रिकवरी सेंटर होगा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, कि भाई अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से काम चलेगा। प्लस एक फार डीआर होता है, वो होता है सपोज पुणे में, हैदराबाद में, चेन्नई में, कहीं भी हो सकता है, इंटरनेशनली भी हो सकता है। जैसे इंटरनेशनल कंपनी है उसका तो मल्टीपल कंट्रीज में होता है डेटा सेंटर। तो वो डेटा इतनी जगह पे फैला के रखते हैं बिकॉज वो डेटा इतना इंपॉर्टेंट है। अगर एक डेटा सेंटर को बनाने में और उसको सपोज 10 साल रन करने में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को लगते हैं अंदाजन सपोज से 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, लेकिन अगर वो डेटा लॉस होता है, मैंने जैसे आपको बताया था, 20 करोड़ अकाउंट एक कंपनी में, जिसमें हर बंदे ने 2000 रुपए डाले, वो 20,000 करोड़ रुपया हो जाए। 20,000 करोड़ रुपया, वो भी लोग, 2,000 तो मैं एवरेज लोअर साइड में बता रहा हूँ कि लाखों लोगों के पैसे, लाखों होते हैं, कितना होता है। तो एक एक बैंक में अगर आप जाके देखोगे, तो अगर कोई बैंक की नेटवर्थ देखोगे या नेट रेवेन्यू देखोगे या नेट सेविंग्स देखोगे, तो उसमें होता है 5 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। उसका अगर आप 1% देखोगे ना, तो वो भी 1%, 1%। तो 1% भी नहीं आप खर्चा कर रहे हो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आज एक बैंक का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो आईटी में हमेशा बोलता हूँ बैकबोन, आईटी इज द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो अगर 1% खर्चा कर रहे हैं, तो इट इज वर्थ इट। कोई भी कंपनी
आंख बंद करके करेगी। तो अगर आपके बैंक के पास सपोज 1 लाख करोड़ रुपया है, और ये बैंक क्या काम करते हैं, इंटरेस्ट का काम करते हैं। ये जो सामने इंटरेस्ट पे देते हैं लोगों को पैसा, उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं साल का? 8% से लेके 13% तक। अब 13% सामने से आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कमाने बचाने के लिए, चलाने के लिए, अगर उनको उसमें से 1% खर्चा करना पड़ रहा है, वो करेंगे। 2-3% बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का, 5% में भी बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का, 5% प्रॉफिट, बैंक चल रही है। दिस इज हाउ अ बैंक वर्क्स एट अ हाई लेवल। तो अगर एक बैंक को 1,000 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है फॉर रनिंग अ प्राइमरी डेटा सेंटर, डिजास्टर, नियर डीआर, फार डीआर, वो खर्चा करते हैं। एंड दिस इज व्हाट ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हाई लेवल पे करते हैं, जो छोटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लोअर लेवल पे करते हैं, बट देन एवरीबडी इज डूइंग इट। सो दिस इज the overview of how a disaster recovery. Now, what are the different types of data centers? Enterprise data center built and operated by individual company. जैसे मेरी एक कंपनी है, मेरी एक बैंक है, मैंने अपने लिए एक डेटा सेंटर बना लिया। ये इधर सिर्फ मेरा डेटा है, मेरा काम होता है। दैट इज कॉल्ड एन एंटरप्राइज डेटा। अब व्हाट इज अ को लोकेशन डेटा सेंटर? अब डेटा सेंटर में जैसे मैंने बताया 1,000 करोड़ रुपया। अब छोटी कंपनी जो होगी वो 1,000 करोड़ रुपया खर्चा नहीं करेगी। तो वो वैसी कंपनीज क्या करती हैं कि को लोकेशन डेटा सेंटर वेयर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन कैन रेंट स्पेस फॉर देयर सर्वर्स एंड हार्डवेयर। बिकॉज कूलिंग, आपको मैंने पहले समझाया ना, कूलिंग है, पावर है, फैसिलिटी, एक्सेस, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, मैन पावर, 100 चीजें लगती हैं। आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको मैं बताऊंगा और कितना लगता है एक डेटा सेंटर बनाने में। तो हर कंपनी तो 1,000 करोड़ रुपया, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ नहीं खर्चा कर सकती। तो व्हाट दे डू इज दे रेंट स्पेस। कि अगर एक डेटा सेंटर बनाया है कंपनी ने, उधर 5,000 सर्वर लगे हुए हैं। अब मेरा छोटा काम है, बहुत छोटा काम है, हाँ मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा डेटा है, मुझे 5,000 में से मुझे तो सिर्फ एक ही सर्वर चाहिए। अब एक सर्वर के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं उस कंपनी के पास जाता हूँ और एक सर्वर के लिए मैं रेंट कर लेता हूँ। और मुझे वो लोग क्या देते हैं, वो लोग स्पेस देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, जहां पे मैं अपना सर्वर लगाता हूँ और मैं अपना काम चलाता हूँ। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे एक हाई लेवल डेटा सेंटर की सिक्योरिटी, प्रोसेसेस, डिजास्टर रिकवरी, सब कुछ मिल गई एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, जो मैं अफोर्ड कर सकूं। सो दैट इज अ को लोकेशन डेटा सेंटर। कि भाई अभी एक बिल्डिंग में सपोज 25 कंपनी है, वो 25 कंपनी ने मिलके 26वें माले पे एक डेटा सेंटर बना लिया, उसको को लोकेशन कर दिया, सब यूज कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर क्लाउड डेटा सेंटर्स? क्लाउड जो हम काफी टाइम सुनते हैं, क्लाउड के ऊपर भी हमारे सेशन है। क्लाउड डेटा सेंटर्स के जो हैं वो मेजरली मैंने बताया था आपको, AWS है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है। ऑल दीज प्रोवाइड क्लाउड। दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड वेरी हाई सिक्योरिटी एंड अदर फंक्शंस। दे आर स्केलेबल। जैसे अगर आप एक है ना AWS के, अभी मैं एक कंपनी हूँ, ओके, अब मैं काम क्या करता हूँ, मैं क्लॉथ का काम करता हूँ। अब मुझे पता है कि मेरा जो पब्लिक, मेरे जो साइट पे जाके, वेबसाइट पे जाके, मिंत्रा हूं, सपोज मैं मिंत्रा हूं, ओके, एंड आई एम सेलिंग क्लोथ्स एंड मर्चेंडाइज। नाउ what is happening is that I know that every day, usually I see 10,000 people logging onto my website and searching for clothes and apparels, to 15,000 people। ये मेरा डेली का एवरेज है। मेरा वीकेंड का एवरेज है 20,000। तो मैंने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बनवाया या मैंने लिया, वो था 20,000 लोगों को मैनेज करने का मैक्सिमम। अब क्या होता है, सडनली आती है रमजान या कोई और फेस्टिवल आता है, इंडिया में दिवाली आ गई, क्रिसमस आ गई। अब इन फेस्टिवल्स के टाइम पे क्या होता है, सडनली देर इज अ सर्च। कि भाई जो अब तक 20,000 लोग मेरे साइट पे आ रहे थे, वो सडनली 20,000 से हो जाते हैं 50,000। अब मैंने अगर सर्वर लिए थे 100, तो वो 20,000 का जो लोड संभाल रहे थे वो 50,000 का लोड संभाल नहीं पाएंगे, सर्वर क्रैश हो जाएगा। दिवाली जब तक जाएगी नहीं, मेरा सर्वर बनेगा ही नहीं, मेरा पूरा धंधा फिनिश। तो व्हाट क्लाउड डेटा सेंटर डज इज इट प्रोवाइड स्केलेबल सोल्यूशन। कि मैं उनको बोलूं कि भाई दिवाली आने से 10 दिन पहले मैं 100 सर्वर की जगह पे मैं 500 सर्वर यूज करूंगा।
और दिवाली खत्म होने के बाद मैं और 10 दिन तक 500 सर्वर यूज करूंगा, और मुझे ये सर्वर्स की रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका जितना पैसा उस वक्त में बनता है मैं उतना दूंगा। तो दिस इज अ स्केलेबल ऑप्शन। तो मुझे खरीदनी भी नहीं पड़ी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका होता है। जैसे क्लाउड में अगर आप, इफ यू रिमेंबर माय प्रीवियस सेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मतलब आप पैसे दे रहे हो। अगर मैं 1 महीने के लिए वो सर्वर यूज कर रहा हूं, मैं सिर्फ 1 महीने का पैसा दूंगा, मैं वो पूरे सर्वर का पैसा क्यों दूं? मैं 1 महीना यूज करने के बाद उनको यूज करना बंद कर दूंगा। बट जो कंपनीज ये काम करती हैं, जैसे amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, उनका ये दिन रात का काम है, तो वो ये चीजें चलाती रहती। सो दिस इज व्हाट अ क्लाउड डेटा सेंटर इज। Cloud data center, when we are learning about, when we are having a session about cloud, we will learn it in more detail. But I hope an overview is there. So we are ending the first session of data center today. There are going to be multiple sessions. Data center is not a topic that I can conclude in one session. So functions of data center is data storage, जो आपका डेटा स्टोर करे, जो डेटा प्रोसेस करे, डेटा बैकअप करे और लोगों तक पहुंचाए, which is hosting. So what is a data center functions? Storage, processing, backup, and hosting services. So these are your types of data centers. These are your functionalities, or infrastructure of a data center. Go through these sessions, maybe at least 1 or 2 times, and I assure you, anybody, कोई भी अगर आपको आगे पूछेगा आप डेटा सेंटर के बारे में क्या जानते हो, able to answer. इंग्लिश में करोगे बेस्ट है, नहीं करोगे तो भी एटलीस्ट फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट परस्पेक्टिव इट विल बी क्लियर इन योर माइंड. Be available for the next sessions where we will go further into the data center deep diving into their technologies. So Haris, I'm sure you would have put our WhatsApp channel link and our WhatsApp group link on the chat box so that the students can access it. On our channel, the next date of the session will be announced. So please be there in the channel and our WhatsApp group and don't miss the next session. Thank you very much.